Okay, so gentlemen, what we were covering last week, that was the switch attack categories, and here we talked about the important attacks which can occur on layer 2, and the attacks may be MAC table attack, where you flood the MAC table of a switch. For example, I gave you an example where, for example, by using this Kali machine and by using the MacOff function, I can generate, a host can generate lot of different IPs and MAC addresses, and these MAC addresses can be sent through your interface. Like for example, you can see here on the terminal that if I give the command ifconfig, so you can see that this machine has a single Ethernet, although it is a VM virtual machine, but it is showing that it has a interface named ETH0, and it has a local loopback interface which is a LO0. So although LO0 is not of use for me here it shows me that this machine is talking to the rest of the world through this interface, which is an Ethernet interface. Now I use the sudo, for example, and MacOff, and then I'm saying that send this traffic through ETH0. But before this, I can do two things. I can, if I go and split this into horizontally or vertically, wherever you want, I did vertically here, and here I start the, for example, Wireshark. Here I start the Wireshark, and in a minute you can see that the Wireshark is started, and here again I can see that the interface through which the packets will go out or come into the network or into this device is ETH0, whose IP address is 10.0.2.4, as we have seen, and it has a IPv6 address FEAT : blah blah. So gentlemen, it shows us that there is an interface which is virtual, but there is an interface. So what I am doing here, I'm starting the capturing on this interface, but because there is no traffic, so I'm generating the traffic here, and I'm using the sudo. And let me tell you that this sudo is part of the dsniff. So initially I downloaded and installed this package which is called dsniff, and this dsniff have many components, and one of them is the MacOff. So I'm using here MacOff. So sudo MacOff and the interface, which is I. So you can see here it will be generating. Here you can see that it is generating the packets, and these packets are being captured here. So you can see within no time I generated around more than 40,000, 50,000, so on. So if I stop here, so I can show you, if I stop here and I can show you here in this test, that every time there is a different source and destination address, and there is a different MAC addresses, source MAC and destination MAC. As you can see here, for example, here the source is 44 and 6D. If you can write it, it will be nice. But if you look at different frames, all the packets belong to it seems like that this machine has different generating different MAC addresses. So it means it looks like that different machines are attached to a switch, and if to the ETH0 a switch is connected, definitely its table will be flooded, and a time will come that all the entries in the table will be full of faults or will be poisoned, and the switch will start working like a definitely like a hub, right? And that's something which is the desire of the attacker.
because he might be attached to the same network, and by using similar tool like Wireshark, he will be capturing all the traffic which is moving within the network. Right, gentlemen? Is it clear? Okay. Now the answer is that हमें ये तो पता चल गया कि मशहूद हमें ये अटैक हो गया, हम पे ये अटैक मैक टेबल अटैक हो गया. The answer is इससे कैसे बचें? That is even more important. And the answer is that we should use this method which is called port security. What it means? As you can see in the description, and then I will explain to you further, that it prevents many type of attacks including MAC address flooding attack and DHCP starvation attack. So first of all, I should tell you what is the DHCP starvation attack. DHCP starvation means that your DHCP, if there is any question you can ask, but I hope that you know that DHCP is something which provide you dynamically IP address to the clients. Dynamically IP addresses, IP version 4 addresses to clients. That is DHCP. Simple. Now, the question is that if this is the machine which is providing the IP addresses, nice. So it doesn't have the infinite number of IP addresses, because definitely it is a machine like, for example, your Wi-Fi router. It might be your Wi-Fi router, and this router is having limited RAM and having limited processing power. So that's the reason might be you may allow this device DHCP server to give, for example, 20 or 30 IP addresses starting from, for example, 0.1 and ending at 0.0, 0.20. I hope you agree with me. So if you agree with me, Yes, sir. then okay, then what will happen? That if you somehow, and you further know that this DHCP works based upon the principle which we call as DORA, where D stands for discover, O for offer, R for request, and A for acknowledgement. And you must know as well that these two, number 1 and number 3 processes are done by the client. There is something in the chat. Okay. Elias. So, gentlemen, हम बात ये कर रहे थे कि ये 1 और 3 is been, these tasks are performed by the client, while O, which means the second, if I change the color, this O and acknowledgement, this is done by the server. So, which means server sends the offer. Server acknowledge what IP has given. I hope you agree with me here. So, gentlemen, हम कहना ये चाह रहे हैं कि इस प्रोसेस के जरिए अगर कोई रॉग मशीन बार बार DHCP डिस्कवर भेजे तो क्या है, 20 रिक्वेस्ट ही भेजनी है ना, and within a minute or even less than that, all the 20 IP addresses seems like will be consumed. And if there is a legitimate user, he will be always waiting, because these 20 IP addresses might be given for a lease time of, like for example, if I show you here CMD and I show you the IP config /all, so you will find that this IP address, whatever the IP address I have, that is leased to me up to 519, starting from morning at 9 o'clock approximately, and this lease time will expire at this time. So the question is, it means this IP address is with me up to 5, and now it is probably for 1 hour more. So the question is that if any legitimate user comes, he will not be given the IP address, and that phenomenon is called DHCP starvation. So how we can limit this problem, or how we can tackle this problem? And the answer is through port security. Now, gentlemen, if I can show you here an example
you can see on your screen that there are two machines, PC1 and PC2, attached to the fast Ethernet 1, 0/1 and 0/2. Now, gentlemen, if there is no port security implemented on this switch, do remember that port security is a feature related to layer 2, which means switch. It does not have any relation with the PC1, PC2, ROG laptop. So, as I said, that if MacOff is running on PC1 or PC2 or even on the ROG laptop, it can fill the MAC table. And I have shown you in the last class that a MAC table, if I use the enable and show MAC address table, so the MAC address table have something, the 4 columns, which indicates number 1, the VLAN to which the port belongs, or the ports belong. Number 2, the MAC address of the device, in this case PC1, PC2, ROG laptop, and the type, whether it is statically given or dynamically learned, and the port of the switch to which this MAC address is attached. I hope you understand. We have discussed this in the last week lectures. Now, gentlemen, now if this machine starts bombarding, I will say, any of this, maybe the ROG laptop sends maybe 30,000, 40,000, 1 lakh, definitely the switch have a limited memory in which it can store this table. So a time will come that it will be exploded, and when it is exploded, it will behave. When then there will be a true traffic there. It will be always broadcasted. It will be always. This switch will behave like a hub. So how to stop it? As I said, you have to implement the two things. One is the port security, and number 2, you must you must shut down the ports which are not in use. Like, for example, if it is a 26 port switch, 24 ports are fast Ethernet and 2 ports are the the gigabit ports. So only 2 are being used. So the good practice is that you should shut down all the other ports. So let's start. How we implement it? So the answer is, gentlemen, that we should go to the switch as I explained further, and I will go to the conf terminal to go to the global configuration mode, and I want to implement this port security on port number 1 and 2. As you can see on the screen, fast Ethernet 1 and fast Ethernet 2, or 0/1 and 0/2. So if I select them, so the command will be interface range. I can do on individual as well, but nice to have a range so that everything is implemented once, and it is fast Ethernet 0/1-2. So it means I selected both of them. Now, and do remember, by default, port security is disabled. By default, the port security is not implemented, right? So if I go end from here, for example, and I say show port security, and here, so you can see that there is no port security. Secure might be that I have done some, yeah, probably because I was using this. So let me close it first and then open it again.
Okay, so now let me see it. I go to the switch, I go to the CLI, I go to the here enable, and I give show port security and enter. So what's the response? Nothing. What it means? Not enabled. So that is the by default. Whenever, for example, if you have a switch working in your organization and you haven't configured the port security, it will show something like this. Show port security, as you can see again, nothing. Nothing means not enabled. So if you are interested, and you must be interested to implement this port security in your networks to save your network from attacks like MAC table flooding or DHCP starvation, for example. So what I do, I go to whatever the ports I'm, because what I will be doing, what is my strategy? I need to close, as I said, I will be shut downing all the ports which are not in use, number one. And number two, the ports which need to be open, I will implement the port security on them. So target is clear, objective is clear. And finally, I need to verify port security as well. So whether what I have done is implemented or not. कुछ बात समझ आ रही है, gentlemen? Yes. Nice. So what I do, I go to the conf terminal and I choose the interfaces, which is the interface fast Ethernet interface range fast Ethernet 0/1-2. So they are here. And the first step is I switch port, and here the port security. You can see we have used this port security switch port in the past as well, when we are using to convert the ports into access port or the trunk ports. But here our objective is, or the voice ports, but here our objective is to implement the port security, as you can see on the screen. And the objective is security related command. It is a security related command. Yes, we understand. And that's the reason I am writing here port security and enter. And if I give here do show port security, show port security, so you will see that it is not blank, which means it is not blank now, but nothing is here. But at least the port security is implemented. It is not configured, but it is enabled. Is it clear, Asif? Okay, so first point is there. Now I come to the next point, which is again switch port and port security, and I give the question mark here. So you can see here, number one, I can assign the important are, number one, MAC address. So there are two ways. If I give a MAC address, that port will assume that always this MAC address will be attached to this port. So for example, if I am connecting a server here and I know the MAC address definitely because it is on the NIC card, so I can enter directly here as well. And the next one is how many addresses, because the problem was in the last case that my H0 was sending maybe 50,000 or more addresses and it was learning. So what is the objective of maximum? Maximum secure addresses. How many addresses you want that your switch must learn at the maximum from this port? Very strict is 1, not more than 1. That is one option. Or even you give 5, 10, something like this. So it will only learn up to this point, and above, and if there is any like F0 sent further, it will be ignored simply. And in this way my MAC table will never be flooded and it will never be poisoned, because अगर 10 ये गलत एंट्री भी दे देता है तो बाकी ठीक एंट्रियां तो होंगी, उसके लिए जगह मौजूद है जी. Is there any question? No, sir. Clear. Okay, so now I go to the maximum
and I gave, for example, 1, 1, 2, whatever you want. So it is telling this switch, this command is telling to this port of the switch, which is fast Ethernet 0 and 1, that they will not receive more than 1 MAC addresses. So some security has been achieved. अब ना ही तो इस पे एक से ज्यादा मैक एड्रेसेस आ सकेंगे, तो फ्लडिंग से हम बच गए। नेक्स्ट है, क्या ये मैक एड्रेस कैसे हासिल करें? डायनामिकली, जो भी पोर्ट, जो भी आपने डिवाइस लगा दिया, पहले डिवाइस जो भी पहला लगेगा, इन दिस केस अगर आप 2 कहते तो पहला उतारे, दूसरा लगा दे, उसका भी ये लर्न कर लेगा। अगर आप 5 देते हैं तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि पहला उतारा, दूसरा लगाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तक ये लर्न करेगा। उससे ज्यादा अगर होता है तो दैट इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक। आप कहते हैं नहीं जी वो नहीं चाहिए, तो दैट इज योर चॉइस। तो अब दैट इज समथिंग, ईदर यू वांट टू गो फॉर द स्टैटिक or you should want to go for the dynamic. So let's go for the dynamic one, because mostly we are interested here. So it is the switch port security, and now I am going to the MAC address. What can be, again I'm giving the question mark here, and you can see the MAC address. So I can give the MAC address. So I can, again the question mark, I can give the 48-bit MAC address, or I can write here the sticky. By sticky it means as if configure dynamic secure address as sticky. Which means if I give the 48 bits, it will be the MAC address of the device, which I assume that will be connected to this port 1 and 2. But दोनों पे एक ही MAC address, फिर हमें अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि दोनों पे एक ही MAC address होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई खुद लर्न करो, तो then I will be giving the option which is sticky. So here is the sticky, and I enter. सर सपोर्ट इसकी डेडिकेटेड नहीं हो जाएगी? क्या हो जाएगा किस केस में? स्टिकी के केस में कह रहे हैं बात, या मैक? नहीं, स्टिकी में डायनामिक है। इसका मतलब कि आपने, और मैंने इसको मैक्सिमम 1 नंबर लगाया है। इसका मतलब जो ही लेट कर ये मेरा स्विच है, मैंने स्विच के ऊपर RJ45 लगाया, जो कि एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल एक वर्क स्टेशन के साथ कनेक्टेड है, जो भी उसका मैक होगा। कहने का मकसद, अब आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो कहने का मकसद ये है यहाँ पे मशहूर कि हमने इस सिस्टम को, इस स्विच को, इस पोर्ट्स को, इन 2 पोर्ट्स को, जो कि फास्ट इथरनेट 0/1 और 0/2 है, इनको बता दिया, अगर इनको बता दिया कि अगर आप पे जो भी लगे डिवाइस, आप उसका एक मैक एड्रेस, जो पहला जो भी लगे उसका मैक एड्रेस अपने पास रिकॉर्ड कर लो, किसमें? मैक एड्रेस टेबल, बस, इसके बाद नहीं। तो इसका मतलब कि डायनामिकली तो आपने 48 बिट मैक एड्रेस का क्या मतलब हुआ सर? 48 बिट का मैक एड्रेस, जी जी, इसका मतलब ये हुआ, इसमें ये मतलब नहीं हुआ कि हम अगर मैक एड्रेस ही वो उसमें डाल दें कि बस डेडिकेटेड पोर्ट हो जाए? जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये स्विच है, ये फॉर एग्जांपल एक पोर्ट है, इस पोर्ट के साथ आपने यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया विच इज PC1, लेट इट बी, इसका मैक एड्रेस जो है वो MAAA है, MAAA है। तो अगर आपने इसको दे दिया स्टिकी, तो ये लर्न कर, जब भी ये से कनेक्ट होगा, ये लर्न कर लेगा कि मेरी पोर्ट नंबर 1 के साथ जो मैक एड्रेस है वो MAAA। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि वहां वो डायनेमिकली ये रीड करे, आप इसको फिर वो दे सकते हैं जो भी आपका 48 बिट का मैक एड्रेस उसके ऊपर लिखा हुआ है। जी ठीक, यानी इन अदर वर्ड मैं कहना चाहता हूं कि जब आप मैक एड्रेस देंगे तो इट विल बिकम स्टैटिक, स्टैटिक एंट्री विल बी देयर इन दी मैक टेबल, और अगर आपने इसको स्टिकी दिया तो इट विल लर्न by talking to this PC1 and recording the MAC address in its MAC address table. जी जेंटलमैन, एंड ये भी बताया कि ये क्या कुछ रीड करेगा, ये पोर्ट नंबर रीड करेगा कि इस पोर्ट पे है,
VLAN रीड करेगा, मैक एड्रेस रीड करेगा और बताएगा कि ये स्टैटिक है या डायनामिक। 4 चीजें रीड करके अपने पास स्टोर कर ले। मेक सेंस? Yes. Okay. Then we come to the again to on the switch one same. Now what I'm saying that the अगर ये कोई भी गलती हो तो सजा क्या है? लाजमी तौर पे हमने पोर्ट सिक्योरिटी लगाई है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आपने लेट करें हवावे के ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, आपने डेफिनेटली वहां सिक्योरिटी लगाई है, लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच करता है तो क्या सजा होगी? अब हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि सजा क्या हो। मेक सेंस? सजा ये भी हो सकती है पोर्ट कि कोई डिसेबल हो जाएगी। वन ऑफ द ऑप्शन इज कि अगर सजा ये भी हो सकती है कि जैसे अभी आपने कहा जो कि सबसे सख्त है कि अगर कोई भी मिसाल के तौर पे हमने एक वो दिया, अगर कोई ज्यादा गिराता है मैक एड्रेसेस इसके ऊपर, तो ये पोर्ट ही डिसेबल हो जाए और उस वक्त तक डिसेबल रहेगी जब तक एडमिनिस्ट्रेटर फिजिकली उसको अनेबल ना करे, यानी खुद वो अनेबल दोबारा नहीं होगी। मेक सेंस? दैट इज द स्ट्रिक्टेस्ट वन। क्योंकि आपने, मैं सबसे नरम से बात करना चाहता Yes. था, लेकिन आपने सबसे स्ट्रिक्ट ऑप्शन ले लिया कि जी एक ऑप्शन ये होना चाहिए कि अगर कोई भी वायलेशन हो तो 2 काम हो। चलें, आपने एक बताई, मैं 2 कह देता हूं। एक ये कि इसकी लॉग में एंट्री हो जाए, और नंबर 2 ताकि कल अगर आप उसको देखें तो आपको पता चले कि जी अच्छा इसमें ये वायलेशन हुई थी सिक्योरिटी की, पोर्ट सिक्योरिटी की, जिसकी वजह से ये पोर्ट शट डाउन हो। तो आप उसको फिर फिक्स करेंगे जी कौन है जो ये ऐसी हरकत कर रहा है। ये तो एक बात हो गया। नंबर टू ये है कि नहीं, आप कहते हैं कि लॉग बन जाए लेकिन काम होता रहे, लॉग बन जाए लेकिन ब्लॉक ना हो, शट डाउन ना हो, तो दैट्स अनदर ऑप्शन। एंड द थर्ड वन जो है कि जी जेंटलमैन, सर अगर मैक एड्रेस चेंज ही होता रहे, उसमें उसने वो भी लगाया हो कि मैक एड्रेस चेंज है, तो फिर लॉग का फायदा क्या? लॉग का फायदा ये है कि एटलीस्ट आपको, एक तो ये ना कि जैसे आपने अपनी मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल, पहले मैं आपको आपकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूं और फिर मैं यहां से नेटवर्किंग से देता हूं। आपके जो बाहर जो भी सिक्योरिटी का बंदा बैठा हुआ है, आप कहते हैं नहीं किसी को आपने कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो ही अगर कोई आप देखो कि वायलेशन है, मिसाल के तौर पे there's some issue with someone anyhow, तो मशहूद माइक जरा बंद कर दें और जब क्वेश्चन हो तो उसे खोल लें। हम बात ये कर रहे थे कि एक ये कि आपने जो बाहर अपना गार्ड खड़ा किया हुआ है ऑफिस के बाहर, आप उसे कहते हैं कि जी अगर कोई भी वायलेशन हो तो उसको, उस बंदे को अपने पास नोट भी करो, अपने लॉग बुक में लिखो भी, और साथ ही उस बंदे को रोक भी लो। दैट इज वन ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन ये है कि आप कहते हैं नहीं, अंदर उसको जाने दो, उसको मत रोको, लेकिन अपने पास नोट कर लो कि जी इस टाइम पे एक अनयूजुअल इवेंट अकर हुआ। आपके ख्याल में अनयूजुअल, ये अनयूजुअल क्या होगा कि 5 आपने अलाउ किया या 2 आपने अलाउ किया, तीसरा आ गया है, बस उसको अपने पास नोट कर लो, ताकि एडमिनिस्ट्रेटर फिर डिफाइन करे क्या। मिसाल के तौर पे आपने एक रखा है दैट इज स्ट्रिक्टेस्ट वन, आपके किसी पोर्ट के ऊपर 5 लोग पॉसिबल है कि आए हों, किसी भी रीजन की वजह से पोर्ट के ऊपर लोग तब्दील होते रहे, आपको, आप उस पोर्ट को बंद नहीं करेंगे क्योंकि आप यूजर को ये नहीं कि बताना चाहते कि जी आपको आने की इजाजत नहीं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि स्पोर्ट में ज्यादा की जरूरत है, आप इस मैक्सिमम नंबर को इंक्रीज कर दीजिएगा बाद में, तो दैट इज अनदर ऑप्शन। बात समझ आ गई? जैसे मिसाल के Yes, तौर sir. पे मैं आपको इसकी अच्छी एग्जांपल दूं, अगर आपने हमारे साथ कोई साइबर सिक्योरिटी का कोर्स लिया है या सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्स लिया, तो हम उस वक्त आपसे बात करेंगे कि जी हमारे पास 2 डिवाइसेस होती हैं, एक को कहते हैं आईपीएस और एक को कहते हैं आईडीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जो डिटेक्शन सिस्टम होता है वो सिर्फ डिटेक्ट करता है कि जी काम गलत हो गया है, लॉग बना देता है आपके लिए और एडमिनिस्ट्रेटर पे छोड़ देता है कि वो लॉग को पढ़े और अगर कुछ मसला अगर वो समझता है तो एक्ट करे और नहीं है तो बस ठीक है, उसका काम सिर्फ डिटेक्शन है।
जबकि प्रिवेंशन सिस्टम का ये काम होता है कि नहीं, वो डिटेक्ट भी करता है और रोकता भी है। तो इसका मतलब है कि लाजमी तौर पे जब दुनिया ने आईडीएस बनाया है तो वो हमें हमें समझ आ रही है कि वो तो स्टॉप नहीं करता, वो तो कहता है आता रही, लेकिन वो उसकी उसकी एनॉमलिटी अगर कोई है उसको अपने पास लॉग कर लेता है। अब बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। ओके। तो हम यहाँ पर भी ये चीज देखना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे कमांड दें स्विच पोर्ट, जी, स्विच पोर्ट एंड पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशंस की बात करते हैं। वायलेशंस, और वायलेशन में 3 ऑप्शंस है, आपको देख रहे हैं। कहता है कि प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट एंड शट डाउन। तो 3 मोड्स हैं। तो अगर हम इसको मिसाल के तौर पे कह देते हैं रिस्ट्रिक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वायलेशन होगी तो ये उसको अपने पास लॉग कर लेगा, लेकिन रोकेगा नहीं, शट डाउन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसको दे देते शट डाउन, जो कि थर्ड ऑप्शन है, तो फिर ये लॉग भी करता और लॉग भी करता और शट डाउन भी करता। और शट डाउन भी ऐसा कि वापस नहीं आएगा जब तक कि नो शट डाउन की कमांड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देगा। जबकि प्रोटेक्ट का मतलब जो होता है दैट इज दी सबसे कमजोर रूल है कि कुछ भी ना करो। सिंपल, आपने आपने एक की वो लगा दी, ना आप लॉग में इंटरेस्टेड है ना आप ब्लॉक करने में इंटरेस्टेड है, नाइस, आपकी मर्जी। इज इट क्लियर? यस सर। तो रिस्ट्रिक्ट हमने इसको दे दिया मिसाल के तौर पे, आपकी मर्जी है, शट डाउन दे दो, नो प्रॉब्लम। चले शट डाउन दे देते हैं, शट डाउन दे देते हैं, ऐसे शट डाउन दे देते हैं, इंटर कर दिया। अब अगर यहाँ पे कोई गलत एक्टिविटी होगी तो बात आगे नहीं जाएगी, यानी शट डाउन हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं कि वाकई ऐसी बात है भी या हम मजाक कर रहे हैं। तो जेंटलमैन, हम यहाँ पे वापस आते हैं और अभी हम ये करते हैं कि आप थोड़ा अपने पास नोट कर लें कि आपने पास लिख लो कि पीसी 1 का आईपी एड्रेस जो है 10.10.10.10। आई होप यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। अल्दो मैंने आपको बार बार कहा हुआ है कि मैं तो उसके ऊपर कर्सर रख के आईपी उसका देख लेता हूं। In the real network, you should open a command prompt, give the command ipconfig/all, and you can see the IP address of the machine. जबकि PC2 को इन्होंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 10.10.10.11, और एक रॉग पीसी है, एक रॉग लैपटॉप है जिसको इन्होंने 10.12 दिया हुआ। आई होप यू कैन सी दैट। अब मैं करता ये हूं कि, और इसके अलावा बाकी तमाम पोर्ट्स को आपको शट डाउन कर देना चाहिए। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ये है कि उनको आप, क्योंकि अगर ये ऑन है तो आपने इन पे तो आपने रुकावटें लगा दी कि जी इस पे एक से ज्यादा ना दे, लेकिन रॉग पीसी किसी 3 के साथ कनेक्ट होता, मिसाल के तो पोर्ट नंबर 3 आपको नजर आ रहा है कि खाली है, पोर्ट नंबर 3 स्विच की खाली, 3 अप टू 24 खाली है, ओनली 1 and 2 is up as you can see on your screen, the remaining are closed, सॉरी डाउन फॉर अ टाइम भी। लेकिन अगर 3, 4, 5 किसी के साथ भी लग जाए और मैक ऑफ चला दे तो ये उसके टेबल को तो आपके सारा फंक्शन बेकार गया। तो बेहतरीन तरीका ये है अब कि बाकी तमाम को आप सेलेक्ट करें और उनको शट डाउन कर दें, ठीक। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम आपको दिखाना ये चाहते हैं कि अगर ये मेरा पीसी 0 है, और इसके 2 तरीके से मैं कर सकता हूं। जेन्युइन मेथड यही है कि मैं उसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊं और पहले अपने आप को पिंग करके देख लूं, विच इज 10.10, जी बिल्कुल 10.10, और फिर 10.11 को कर लेंगे। तो पिंग 10.10.10.10 just to show that we are okay, and if it is okay then I can give 10.11 as well, and it is also okay, not an issue. अब मैं करता ये हूं पहले कि इस रॉग पीसी को कनेक्ट करता हूं किसी दूसरी पोर्ट के साथ। मिसाल के तौर पे आई टेक अनदर स्ट्रेट केबल एंड आई कनेक्ट दिस रॉग पीसी to this, fast Ethernet this, and it is up, nice.
Now I go to this ROG PC, take the desktop, again to the command prompt, and I ping 10.10.10.10 and it's working. तो कौन सी सिक्योरिटी मैंने इंप्लीमेंट कर ली? कुछ भी नहीं किया, अपना टाइम जाया किया सिर्फ। तो इसलिए जरूरी है कि मैं इन पोर्ट्स को क्या कर दूं? बंद कर दूं। तो उसके लिए मैंने पहले आपको बताया कि आई शुड गो हियर टू दिस स्विच and I should end here and I should go to the conf terminal and to the interface fast ethernet range fast ethernet 0/2, not 2 but 3 up to 24 and gigabit 0/1-2 selected, and I give the command shutdown, and it is done. And now I can, and you can see here, change state to a okay. So gentlemen, हम क्या कर रहे थे? आप देख सकते हैं कि change state to down, administratively down, and now I go to this ROG PC. देखें रेड हो गया, and that we wanted. अब अगर मैं यहां से पिंग करे, मिसाल के तौर पे पिंग, and you will never get anything, and that is something desired. Is it clear, Mashood? Yes. Okay. Now the problem is that अगर यहां से ये केबल उतार के अपनी केबल लगा दे, that is dangerous. साथ में स्विच तो नॉर्मली ओपन पड़े होते हैं ना, या किसी उसके ऊपर पड़े हुए हैं, ओपन है। तो अब मैंने ये करना है कि मैं यहां से ये केबल्स इसकी भी डिलीट करता हूं, इस स्विच की भी, इसी ROG की भी, और इसकी भी कर देता हूं फॉर एग्जांपल, और इस डिवाइस को ROG PC को कनेक्ट कर देता हूं। अच्छा, इसको कनेक्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पे, अगर मैं यहां से एंड कर दूं, शो मैक एड्रेस टेबल करूं, मैक एड्रेस टेबल, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक एंट्री मौजूद है जो कि इसने फास्ट इथरनेट 0/1 पे रिकॉर्ड की है। एक और भी हम रिकॉर्ड करवा लेते हैं और फिर इसको डिलीट करते हैं। तो जेंटलमैन, हम इसको दोबारा, इसी पीसी को दोबारा लगा देते हैं इसकी फास्ट इथरनेट 0/2 पे, और ये देखें बड़ा एक्टिवली सही काम कर रहा है। हम यहाँ पे आके, टर्मिनल पे नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट पे आके इधर से भी पिंग कर लेते हैं, जो कि है 10.10.10.10, और यहां से भी सवाल जवाब हो गया। तो हम इसको क्लोज करके, माय गॉड, इसको क्लोज करके स्विच पे जाके, और अब इसको कमांड देते हैं शो एड्रेस मैक एड्रेस टेबल। तो आप देख रहे हैं कि 2 एंट्रीज हैं, और इतनी देर में आप ये करें, आसिफ अपनी चेयर लेके इधर आ जाए। अच्छा, आपको तो नजर आ रहा है, दैट्स नाइस। और चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं। तो ये 2 मैक एड्रेसेस इसके पास याद है। अब मैं क्या करता हूं जी, कि मैंने इसकी ये केबल उतार दी, और हमारे अटैकर ने किया कि अपने आप को इसके साथ लगा दिया, ये लगा दिया। तो जो ही इसको लगाया, यू कैन सी, लगा तो पोर्ट 2 पे ही है, लेकिन अब पोर्ट 2 की हालत क्या हो गई है? डाउन हो गई है। तो अब अगर हम इसको यहां पे दें शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटर, तो ये बता रहा है कि यहां पे
ये बता रहा है कि सिक्योरिटी वायलेशन 1 नजर आ रहा है ना, एक सिक्योरिटी वायलेशन इस पे हुई है जिसकी वजह से ये और सिक्योरिटी एक्शन इस पे हमने क्या रखा हुआ है, शट डाउन। तो इसने लॉग किया और साथ ही शट डाउन का जो रूल हमने इस पे लगाया था उसके मुताबिक इसने, आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पे करूं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंड यू कैन सी हियर कि ये पोर्ट नंबर 1 तो वर्किंग है लेकिन 2 जो है वो बैठ गई है। जी, ये देख सकते हो 0 जो है 0/1 इज अप बट 0/2 जो है डाउन हो गई है। अब अगर आप यहां से, अब एक ही तरीका है इससे वापस आने का कि आप इस पोर्ट पे जाएं, आप इस पोर्ट पे जाएं, शो आईपी शो नहीं बल्कि कॉन्फ टर्मिनल एंड देन गो टू दिस इंटरफेस विच इज इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 सॉरी Okay, so gentlemen, we are connected back और हम बात कर रहे थे अबाउट दी पोर्ट सिक्योरिटी और स्क्रीन शेयर और रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। सो दैट वाज दी, तो आपने देखा कि हमने जब इसको कनेक्ट किया तो प्रॉब्लम मैंने इसको कर भी दिया, नो शट डाउन नहीं किया। अच्छा, तो फास्ट इथरनेट 0/2 और नो शट भी कर दूं, हमने ओपन तो कर दिया एंड लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉलिसी बात नहीं बन रही। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, चेक करते हैं, इसको हटाता हूं, कैंसिल। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही और आवाज कट रही है। ओके, स्क्रीन नहीं आ रही, अब आ गई। मशहूद मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? लतीफ मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है क्या? मैंने शेयर्ड है ना? ओके, और मेरी आवाज भी आपको आ रही है? आवाज नहीं आ रही? ओके, ठीक है, समझ गया जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मशहूद? स्क्रीन भी शेयर्ड है और आवाज भी आ रही है, राइट? So we are back, which is nice, seems nice, and I'm sharing my screen again. जब आपको स्क्रीन मिल जाए तो प्लीज लेट मी नो, बट आई होप दैट यू आर गेटिंग माय वॉइस, इज इट ओके? तो यस सर। आज ओके, नाइस नाइस। तो जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे थे कि अब मैं ये कर रहा हूं कि मैं इसकी केबल को हटाता हूं और वापस इसकी केबल PC2 की केबल वापस लगा देता हूं। तो ये देखिए जी, PC2 को मैंने इस पोर्ट पे लगाया और साथ ही में इस पोर्ट को, क्योंकि शट डाउन है, अब इसको कहता हूं नो शट डाउन, नो शट, और नो शट डाउन, शट डाउन, ओ सॉरी, इस जगह से, इस जगह से होना चाहिए।
वही कर शट डाउन, चेंज स्टेट टू स्टेट डाउन एंड नो शट डाउन। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोबारा अप हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि इस सारे टास्क का जो ऑब्जेक्टिव था वो सिंपल सा था, और वो ये था कि हम किस तरह रॉग पीसीस से अपने डिवाइस को बचा सकते हैं। इज इट क्लियर आसिफ, मशहूद एंड लतीफ? यस Yes, sir. ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डीएचसीपी स्नूपिंग। डीएचसीपी स्नूपिंग। और अगर मैं इसके लिए साफ कर दूं यहाँ पे, तो ये क्या है? डीएचसीपी स्नूपिंग क्या है? तो मैं पहले बता दूं कि ये इन दो मसाइल का हल है। एक मसले का नाम है डीएचसीपी स्टारवेशन और दूसरा हल नाम है डीएचसीपी स्नूफिंग। क्या है दोनों में फर्क ये है, जिसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कि स्टारवेशन का मतलब तो ये है कि जितने उसके आईपीज हैं वो उसने दे दिए, चूंकि गलत को दिए डेफिनेटली, क्योंकि एक गलत मशीन ने बार बार डिस्कवर का मैसेज भेजा या रिक्वेस्ट का मैसेज भेजा। ये इन मैसेजेस की मदद से उसने आईपीज लेता गया एंड लेता गया, और आखिर में जो हमारे पास रिजल्ट आया वो ये था कि उसके पास 20 आईपीज थे, ऑल कंज्यूम्ड, although in reality not, बट जो जेन्युइन डिवाइसेस थे जिन्होंने इससे आईपी लेना था, उनमें से कोई भी आईपी लेने के काबिल नहीं रहा। ठीक हो गया? तो इस अमल को अगर आपका नजर नहीं आ रहा तो इधर आ जाओ ना, मिल रहा है आपको नेट? चल नहीं आ जाए इधर। ओके, सो जेंटलमैन, ये जब आईपीस खत्म हो गए तो इसको कहते हैं डीएचसीपी स्टारवेशन। डीएचसीपी स्नूफिंग का मतलब ये होता है, स्टारवेशन तो क्लियर हो गया ना, पहले भी क्लियर ही होगा क्योंकि हमने ये लास्ट वीक इसी पे बात की थी। नंबर 2 जो है इसको कहते हैं डीएचसीपी स्नूफिंग। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर एक वैलिड डीएचसीपी है, ट्रू डीएचसीपी है और एक रॉग डीएचसीपी है। और ये रॉग क्या करती है कि ये सारी चीजें आपको ठीक देती है, फॉर एग्जांपल, लेकिन उससे एक चीज जो कि गेटवे है वो रियल गेटवे की बजाय अपना एड्रेस दे देती है, फॉर एग्जांपल। तो अब आपको पता है सारी ट्रैफिक आपके जरिए, क्योंकि गेटवे अब बाकी डिवाइसेस को ये पता, जिन ने भी आपसे आईपी दिया है उनको ये पता चल रहा है कि आप गेटवे हैं, उस गेटवे को देंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको यहाँ पे अल्टर करें, आपकी मर्जी है कि आप उसको ड्रॉप कर दें, आपकी मर्जी है कि उसको अपने पास स्निफ कर लें और फिर फॉरवर्ड कर दें। बट वट एवर यू डू, यू बिकम मैन इन द मिडल, MITM अटैक। तो इन अटैक से बचने के लिए जो मेथड है उसको कहते हैं डीएचसीपी स्नूपिंग। कुछ बात समझ आ रही? यस सर। ओके, सो इसके बाद हम जिस चीज की तरफ जाना चाहेंगे, जी जेंटलमैन लतीफ, इज देयर एनी क्वेश्चन? समझ आ रही है सर? शाबाश, नो सर। नाइस। तो हम बात कर रहे थे कि इन अटैक से बचने का तरीका जो है वो है सिंपल डीएचसीपी स्नूपिंग। इसी तरह हम पे अटैक आर्प स्पूफिंग का भी हो सकता है, जबकि आर्प स्पूफिंग कहते हैं, आपको पता है, और या आर्प पॉइजनिंग। आर्प क्या है आपको पता है? वो भी चला गया।
आर्प का पता है आप लोगों को कि इट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम ये होता है कि जब आपको अपने ये आप सोर्स हैं, ये आप डेस्टिनेशन हैं, आपको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता, जो कि नहीं होता पता, हो ही नहीं सकता, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसकी मदद से आपको आर्प मिल जाता है, आपको आर्प मिल जाता है। अब इसकी आर्प मिल जाता है क्या मतलब मैक मिल जाता है, और आप फिर उस मैक के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई और डिवाइस, स्पेशली एक और टर्म है जिसे मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन की थी, ग्रेटिट्यूअस आर्प। इसका मतलब है कि नॉर्मल तो ये बिहेवियर है, नॉर्मल तो ये बिहेवियर है कि कोई रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे अपना मैक दो, और आप रिस्पांस में उसको वो मैक एड्रेस अपना लौटा देते हैं। लेकिन ग्रेजुएट आर्प में ये होता है, रखा तो अच्छे पर्पज, हर चीज जो भी बनाई गई आप जैसे लोगों ने डिजाइन की अच्छे पर्पज के लिए। अच्छा पर्पज ये था कि जी अगर मैं खुद नेटवर्क पे आया हूं और मुझसे कोई पूछे तब मैं उसको बताऊं, तो वाई नॉट मैं पहले ही बता दूं कि जी मैं आपके नेटवर्क पे मौजूद हूं, मेरा आईपी एड्रेस ये है और मेरा मैक एड्रेस ये है। लेकिन गलत इस्तेमाल करने वाला उसको गलत इस्तेमाल करता है, और वो मिसाल के तौर पे आईपी अपना देता है, और सॉरी आईपी जो है वो फॉर एग्जांपल गेटवे का देता है और मैक अपना लगा देता है साथ। तो अब लाजमी तौर पे लैन के अंदर जो ट्रैफिक जाती है वो तो इसी के जरिए जाती है, यानी कि मैक के जरिए जाती है, तो उस मैक को वो दे के गेटवे समझ के ट्रैफिक दे दी जाएगी, और अगेन जैसे मैंने अभी कहा कि इट विल बिकम ए मैन इन द मिडल अटैक। तो इसको रिमूव करने के लिए भी अगर आपने स्नूपिंग, डीएचसीपी स्नूपिंग की हुई है, तो आप आर्प इसका एक मेथड है जो कहते हैं डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन, कि आपके पास इस अभी आप देखेंगे कि डीएचसीपी स्नूपिंग के दौरान एक टेबल बन जाता है जब आप इसको इंप्लीमेंट कर देंगे अपने स्विच के ऊपर। अल्दो इफ आई रिमेंबर करेक्टली प्रॉब्ली ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं ये सीसीएनए लेवल के नहीं है, लेकिन हम इनको थोड़ा सा देख लेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि जी इस किस्म के ये मिटिगेशन टेक्निक्स हम इस्तेमाल करके हम लेयर 2 अटैक्स को मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें मैंने से कहा कि आपका एक डीएचसीपी टेबल बनता है, उस टेबल में मेन जो चीजें होती हैं वो वीलैन की एंट्री, इसके अलावा मैक की एंट्री, उसके अलावा आईपी की एंट्री और पोर्ट नंबर। तो ये एंट्री क्योंकि आपके पास होती हैं तो आप चेक कर लेते हो कि ये आर्प जिसने भेजी क्या वाकई उसका मैक एड्रेस ये है, क्योंकि आपके पास तो वो इंफॉर्मेशन है, आपसे मुराद टेबल के स्विच के पास तो इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे कौन सा डिवाइस अटैच्ड है, तो वो चेक कर लेता है कि क्या यहाँ से मुझे इजाजत देनी है, यानी कि मुझे आर्प का पॉइजन होने देना है, क्या मुझे आर्प स्मूथिंग की इजाजत देनी है या नहीं देनी। तो यहाँ पे भी एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट जो आखिरी एक मेथड है जो कहते हैं आईपी सोर्स गार्ड। आईपी सोर्स गार्ड ये 2 किस्म के अटैक से आपको बचाता है, एक मैक स्पूफिंग से और एक आईपी एड्रेस स्पूफिंग से। आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि इसमें कोई शक नहीं कि आपके एनआईसी के ऊपर जो एड्रेस लिखा जाता है आपके वो यूनिक होता है। जो मैक एड्रेस है थ्योरेटिकली इट इज यूनिक, बट देयर आर वेज टू चेंज इट। याद है लतीफ, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? यस सर, पॉसिबल है। पॉसिबल है, कैसे करते हो? ये सर उसमें मैक चेंज के जरिए, काली मैक चेंजर के जरिए मैंने काली में आपको दिखाया था, मशहूद आपने भी देखा हुआ है? ये सर अभी स्टार्ट में देखा था, बाकी नहीं देखा। किस में देखा है? अभी जो आप शुरू में क्लास में बताया। मैंने आज मैक का चेंज नहीं बताया, तो हम बात मैं करना काली की बात कर रहा हूँ। जी काली बताया है, काली में मैक का चेंज करना अभी आपको नहीं बताया, शायद बताया तो हुआ है लेकिन स्टॉप एंड क्विट विदाउट सेविंग बिकॉज इट इज नॉट डिजायर्ड। तो मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप देखें कि मेरा मैक एड्रेस क्या है, तो आई गिव द कमांड ifconfig and I can show you, and please do write with you that the
MAC address, mine MAC address is 080027 blah blah. Am I right? Up to BC. तो अगर मैं जब भी कोई भी पैकेट भेजूं, मिसाल के तौर पे, चलो मैं एक और मशीन ओपन कर लेता हूं ताकि हमें समझ आ जाए। ओके, इसको बंद कर देते हैं, इसका काम हो गया। इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। वापस जाते हैं अपनी इस मशीन के पास और युबंतु को ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो जेंटलमैन, हम क्या मतलब है कि इस वक्त थैंक टू वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन और वर्चुअलाइजेशन, जिसकी वजह से इस वक्त एक मशीन आपके सामने है लेकिन उसके ऊपर 4 मशीनें चल रही हैं। एक युबंटू, एक काली, एक युबंटू, एक काली और एक विंडो 10। अदरवाइज मुझे 3 मशीनें यहाँ पे रखनी पड़ती हैं और फिर शायद पता नहीं उसको किस तरह मैं आपके साथ सबकी स्क्रीनें शेयर करता। तो दैट वाज ए टफ टास्क, बट दिस virtualization has made the life easier. And especially when we talk about, when we practice about the security, at that time this makes our life very easy. Otherwise, itni machine इकट्ठी करना becomes difficult or impossible. सर लिमिटेशन आती है इसमें कि नहीं? Limitation is your hardware. बस मिसाल के तौर पे I have more than 20 GB of RAM. I don't have any problem. Simple. सही। चलो भाई युबंतु स्टार्ट हो जाओ। जी, तो ये युबंतु स्टार्ट हो गया और इसको हमने कहा कि पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड देने की कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मान जाएगा और हमारी उम्मीदों पे ये पूरा उतरा। एक तरफ काली और दूसरी तरफ युबंटू। ये युबंटू आ गया जी, और यहां से मैं टर्मिनल ओपन करता हूं, ओपन टर्मिनल जी, और यहाँ पे इसको कहता हूं आईपी एड्रेस, ताकि आपको आईपी एड्रेस का नजर आ जाए, और वो है 10025। ओके, और इसका जो मैक एड्रेस है वो है ये जी, 08002755D5 ब्ला ब्ला। तो अब मैं करता ये हूं कि अपने इधर से उधर या दोनों में से जिसमें मेरा दिल चाहे, मैं काली पे जाके पहले तो अपना दोबारा स्टार्ट करता हूं वायरशॉक। तो ये मैंने वायरशॉक की दवा फिर स्टार्ट कर दी, और वायरशॉक को स्टार्ट लेने के बाद ये स्टार्ट हो गया, और मैं दोबारा काली के टर्मिनल पे जाके, काली के टर्मिनल पे जाकर मतंकर काली के टर्मिनल पे जाके, और अच्छा जी यहाँ काली चल रहा है तो यहाँ पे मैं कमांड दे देता हूँ और पिंग कर देता हूँ। तो आई कितना उसका
Ubuntu का 10.025 तो देखें जी ये पैकेट जा रहे हैं। टेन 025 जाने तो चाहिए। कंट्रोल सी, इसको हम बंद कर देते हैं, दोबारा खोल लेते हैं और क्योंकि काली भी वो खत्म हो गया, लेकिन अभी खैर दोबारा ऑन कर लेंगे 10.025 हमने यहां से अगर पिंग करें, पिंग क्या बात है, पिंग 10 पहले अपने आप को करते हैं 10.025 ये हम खुद हैं, ठीक है। तो जवाब आ रहा है, आना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कंट्रोल सी करते हैं और 04 करते हैं। अच्छा, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, ये फिक्स करना पड़ेगा। फिक्सिंग के लिए इसका 10.04 करता है। जीरो 5 मशीन को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। हम इसको भी शट डाउन कर देते हैं। रीस्टार्ट कर देते हैं और काली भाई इसको भी कह देते हैं कि मसला एक का है, लेकिन करना दोनों को पड़ेगा। तो इस वक्त हम इसको पहले ओपन कर, जो भी पहले आए को फर्क नहीं पड़ता। ये हमने दे दिया यूबंटू को और काली भी खड़ा वेट कर रहा है और इसको भी हम काली को भी हमने कर दिया। मशहूद और लतीफ आप देख रहे हैं कि दोनों मशीनें हमारी ऑन हो गई हैं।
अब हम ट्राई करते हैं दोबारा यहाँ पे जाके, और साथ ही मैं इसको एक और टर्मिनल भी वर्टिकली ओपन कर लिए, 2 कर लिए। लेकिन पहले मेरा ख्वाहिश ये है कि मुझे पिंग की इजाजत मिले। मुझे भी नहीं पता कि इसका आईपी अब क्या है, दोबारा चेक कर लेते हैं। और आईपी एड्रेस तो आईपी एड्रेस ये कह रहा है कि 10.024 है। तो मैं पहले अपने आप को करके 10.024 इट शुड बी सक्सेस, यस इट इज सक्सेस, कंट्रोल सी करके निकल जाता हूँ। और अब मैं कोशिश करता हूँ कि 5 को करे, अज्यूम करता हूँ कि उसको 5 ही मिला होगा। क्या मसला है? एक और काम करता हूँ इस वक्त, जल्दी का काम करता ये हूँ कि ये हरकत कर रहा है, करना तो हरगिज नहीं चाहिए। N025 ये तो कर रहा है जी, इधर से उधर कर रहा है। yes, तो यहाँ तो बात दुरुस्त है। अब हम पहले एक दफा फिर उधर चेक कर लेते हैं, अब करना चाहिए। जब ये कर रहा है तो ये क्यों नहीं करता? ठीक है, खुद को कर रहा है। नहीं ये 10.024 ये सर 4 का नहीं, ये अपना है इसका ना, तो उसका 5 है। नहीं सर, इसका 5 है, उसका 4 है। ये मैं शायद उस पे बैठा हूँ, सॉरी, मैं यूबंटू पे हूँ, मैं काली पे जाना चाहता हूँ। ये काली, और काली को कहता हूँ कि कंट्रोल सी करो, यहाँ पे आ जाओ, और कहता हूँ करो 5 को, 5 इसका अपना है, 5 इसका अपना नहीं है, इसका अपना 4 है कि नहीं सर? मिनट, उधर से तो हो रहा है, उधर से तो हो रहा है। दोबारा टर्मिनल ओपन करता हूँ, पिंग करता हूँ 10.0.2. इसका अपना 4 है सर, 5 है इसका अपना 4 है, 4 है सर, तो 4 है, ये मैं भी सोच रहा हूँ 4 है इसका अपना। तो पिंग 10.0.2.4 नाइस, it should be कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अच्छा चलो, अगर नहीं भी मान रहा तो इसको मनवा लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ
मैं इस्तेमाल करता हूँ वायरशॉक। ये वायरशॉक ओपन किया, चेक करते हैं, और इसके हम F0 को पे एक्टिवेट कर देते हैं कि जो ट्रैफिक आए वो पकड़ो। और मैं जाता हूँ अपने काली दोस्त के पास और इसको कहता हूँ कि .4 पे ट्रैफिक भेजो। ये ट्रैफिक सक्सेसफुली जा रही है। अब ये ट्रैफिक यहाँ से जाती रहे और काली के पास जाके हम, इसका मसला है कि ट्रैफिक भी नहीं पकड़ रहा, ट्रैफिक भी नहीं पकड़ रहा। मसला इसका है। लेकिन अगर मसला उसका है तो फिर वो इसको पैकेट क्यों भेज रहा है? तो भेज रहा है और रिसीव हो रहा है, मतलब निकल रहे हैं उसकी इंटरफेस से। CP एक और काम करता हूँ, फिर इसके बाद अगर ना हो तो टाइम वो 1 मिनट से कम है, 1 मिनट से कम है, इसको क्लोज कर दो। सक्सेसफुल। मैं जल्दी में इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। आज नहीं हो सकेगा, कहता है less than 1 मिनट। तो कल इसको मैं इन मशीनों को मैं चला के, असल में जो चीज मैं दिखाना चाहता था कि आपको नजर आए कि मैक एड्रेस तब्दील हो जाता है और नेटवर्क को कोई पता नहीं चलता, एंड थिंग्स बिकम्स हाईली ट्रबलफुल। तो कल मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट यहाँ करके और दे दूंगा कि आखिर क्या इसको तकलीफ है कि एक तरफ से ट्रैफिक आ रही है और ये कैप्चर भी नहीं बता रहा। तो देयर इज सम डेफिनेटली सम इशू, बट वी कैन रिजॉल्व इट, नॉट एन इशू। लेकिन 1 मिनट से कम में नहीं होगा कम से कम। तो कल इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। तो आज आपने ये देख लिया कि पोर्ट सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट होती है और वो किस तरह मैक एड्रेस टेबल फ्लडिंग को स्टॉप करती है। इज इट फाइन? यस सर। तो कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ओके मशहूद एंड